Hello students, in previous video we have started the revision of lesson number 8, that is water scarcity and conservation of water, and we have revised that the 3/4 of earth's surface is covered with water, and most of the water is present in the ocean and which is salty, whereas small amount of water is of fresh water and which is present in rivers, streams or lakes, and this fresh water is used by us for our daily needs. And there are some factors which causes a decrease in this fresh water. So we start revising the factors causing shortage of water. So first that we have discussed is population, that how the increase in population that causes the shortage of water, because the water, you can say fresh water, is limited in the nature, but the population is keep on increasing, so more people need more water, but the supply is not increasing, so hence the amount of water available for each person is decreasing. And then second factor is your deforestation. So due to deforestation, the deforestation result in decrease in rainfall. जब रेनफॉल ट्रीज कट हो रहे हैं उसकी वजह से रेनफॉल भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और जिसकी वजह से अगेन shortage of water हो रहा है. And now today we will revise the setting up of factories, that how setting up of factories causes the shortage of water. So big factories are being set up at different places, and this is to meet the growing demands of foodstuffs, clothing and other materials. So as we have discussed that the population is keep on increasing, so their demands are also increasing. उनकी जो requirements है वो बढ़ेगी, उनको जो food चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए, clothes भी ज़्यादा चाहिए, and other materials भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चाहिए. So big factories are being set up. So जो ये बड़ी factories होती है, they need large quantity of water. इनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जो इनकी production है उसके लिए. And from where they get the water, they fulfill this need by using underground water. जो ये water इनको आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, underground water, because ऐसा तो नहीं है कि all the factories are near the rivers, so ऐसे कि वहाँ से वो water ले लें. So they fulfill their needs by using underground water. And you know underground water, जो water जमीन के नीचे होता है. So due to shortage of rainfall, underground water does not get filled up again. So क्योंकि हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जो रेनफॉल है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इस जब रेनफॉल कम होगी तो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी राइज नहीं कर पाता जितना कि हम वाटर निकाल लेते हैं. हम वाटर तो ज़्यादा निकाल लेते हैं बट वो फिल दोबारा से उतना नहीं हो पाता, राइट. सो दिस हैज़ लेड टू अ शार्प डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो बहुत जल्दी नीचे जा रहा है, और यू कैन से कि वो कम होता जा रहा है. सो दिस इज अनदर रीजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. नाउ द नीड फॉर कंजर्विंग वाटर, कि हमें क्या ज़रूरत है वाटर को कंजर्व करने की. So you know that if we continue to waste water resources carelessly, a time can come when there will not be enough water for all of us. तो अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे वाटर को और वाटर रिसोर्सेज को, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास वाटर हमारे रिक्वायरमेंट के लिए भी नहीं बचेगा. And the crops can also die due to lack of irrigation. जब water नहीं होगा available, so you know that जो crops farmers grow करते हैं
उनको भी इरिगेट करना पड़ता है, तो विदाउट वाटर वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. एंड वी शुड देयरफॉर मेक सिंसियर एफर्ट्स टू सेव वाटर नाउ. तो इसलिए हमें वाटर को सेव करना ज़रूरी है, करना चाहिए. और अब आप सोच सकते हैं कि अगर क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगी तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, बिकॉज जो भी हम फूड खाते हैं वो फार्मर्स ग्रो करते हैं, और प्लांट से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, राइट. प्लांट से ज़्यादातर फूड आइटम्स मिलते हैं. अब फूड आइटम्स जब क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करेगी तो हमको कहाँ से मिलेंगे. एंड सेकेंडली, अब हमने जैसे बोला कि अगर हम कंटिन्यूसली वेस्ट करते जाएंगे वाटर रिसोर्सेज को, तो जब ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर नहीं बचेगा तो हम लोग एनिमल्स को कैसे प्रोवाइड करवा पाएंगे. तो एनिमल्स भी हमारे एनिमल्स को भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. सो वी शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू सेव वाटर. हमें वाटर को इसलिए सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर अस इन फ्यूचर ऑल्सो, और ताकि हम ये फ्यूचर के लिए भी हम लोग बचा सकें. एंड हाउ वी कैन सेव वाटर? So we can save water by avoiding the over usage and wastage. हम उसको क्या कर सकते हैं, ओवर यूसेज, दैट मीन्स जो जितना ही हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करें. एंड वेस्ट भी ना करें, हम फालतू जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको थ्रो ना करें. एंड प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर. Proper and careful utilization of water, avoiding its wastage, and maintaining the amount of water in its different resources is called water conservation. So what is water conservation? जो वाटर है उसको अगर हम प्रॉपर और केयरफुल यूटिलाइज करते हैं, वाटर को अगर हम सही तरीके से प्रॉपरली यूज़ करते हैं और यूटिलाइज करते हैं और उसकी वेस्टेज भी नहीं करते हैं, एंड थर्डली जो उसके रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, उनको हम मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. सो वही है, हम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, और जितने भी डिफरेंट वाटर सोर्सेज हैं उनको क्या करना है, हमें मेंटेन करके रखना है, दैट इज वाटर कंजर्वेशन. So we have revised 3 factors which are responsible for the shortage of water. Those are population, deforestation, and setting up of factories. And we have also revised what is water conservation. So now in next video we will revise the ways of conserving water, that how we can conserve water in day-to-day life, or you can say daily life. Thank you.